सब प्रार्थना करें। Thank you, Father. Father, we thank you for this another opportunity to come together physically to worship you. पिता, और एक बार ये मौका देने के लिए धन्यवाद कि हम एक साथ आकर आपकी आराधना कर सके। Thank you for everyone who's come today. धन्यवाद हर उस व्यक्ति का जो आज यहाँ आया है। We are so grateful for your provision. हम आपके प्रावधान के लिए बहुत आभारी है। Minister to everyone who's come here today. जो आज यहाँ आया है, आप हर एक व्यक्ति की आप सेवा टहल करिए। The angels of God are moving freely here. परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ पे आसानी से अपना चलन कर रहे हैं। The spirit of life is impacting every physical body. और जीवन का आत्मा हर एक शारीरिक देह पर अपना प्रभाव डाल रहा है। We also thank you for everyone who's watching us online. हम धन्यवाद करते हैं हर उस व्यक्ति का जो हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहा है। Your word is the truth of our lives. आपका वचन हमारे जीवन का सत्य है। Your word is the truth of our lives. आपका वचन हमारे जीवन का सत्य है। No other thing and nothing. कोई और दूसरी चीज है ही नहीं। Your word is the truth of our lives. आपका वचन हमारे जीवन का सत्य है। Your word governs us. आपका वचन हम पर शासन करता है। We walk on the word. हम वचन पर चलते हैं। We are word people. हम वचन के लोग हैं। We are spirit people. हम आत्मा के लोग हैं। And we thank you, Lord, that today is a productive day. और धन्यवाद प्रभु कि आज का दिन एक फलवंत दिन है। Today is a fruitful day. आज का दिन एक अच्छा दिन है। The word is working in us and producing fruit in us. वचन हम में काम कर रहा है और हम में फलों को उत्पन्न कर रहा है। Today the word is working in us mightily. आज वचन हम में महान तरीके से काम कर रहा है। You're ministering to everyone here. आप यहाँ से हर एक व्यक्ति की सेवकाई टहल कर रहे हैं। Lord, thank you that your presence and your glory is here. धन्यवाद पिता कि आपकी उपस्थिति और आपकी महिमा यहाँ है। We give you all the praise. हम सारी महिमा आपको देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. Amen। I want to welcome all of you to church today. मैं सभी का आज कलीसिया में स्वागत करना चाहता हूँ। And I want to continue my sessions on the first session, which is the Father's Provision Part 4. और पिता का प्रावधान इस सत्र को हम जारी रखेंगे और आज हम उसका भाग 4 देखेंगे। The moment you accepted Jesus as your Lord, God Almighty has become your Father. जिस क्षण आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका पिता बन गया। Just like all of us have an earthly father, God Almighty is our Father. जैसे हम सभी के अपने पृथ्वी के शारीरिक माता पिता है, वैसे ही परमेश्वर हमारा पिता बन गया। And just like every father has some resources, our heavenly Father also has resources. जैसे हर एक पिता के पास अपने कुछ संसाधन होते हैं, वैसे ही हमारे स्वर्गीय पिता के भी कुछ अपने संसाधन हैं। And our Father's resources are unlimited. Our earthly father, their resources may be limited, but our heavenly Father, his resources are unlimited. हमारे शायद से जो शारीरिक पिता है उनके जो प्रावधान है और जो संसाधन है वो शायद से सीमित होंगे, पर जो हमारे स्वर्गीय पिता के संसाधन है वो असीमित है। Now there was a person named Mephibosheth. एक मेफीबोशेत करके एक व्यक्ति था। Now Mephibosheth was sitting on David's table and eating David's provision. और मेफीबोशेत जो था वो दाऊद के मेज पर बैठकर दाऊद के साथ भोजन खा रहा था। Now all of us, we are also sitting on our father's table and we are enjoying our father's provision. वैसे ही हम भी हमारे पिता के मेज पर बैठे हैं और हमारी पिता के मेज पे जो संसाधन है उनका आनंद ले रहे हैं। Now Mephibosheth, he didn't have to worry about the provision. तो ये मेफीबोशेत जो था उसे प्रावधान की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। David said that Mephibosheth will sit on David's table. क्योंकि
दाऊद ने कहा था कि मेफीबोशेत दाऊद के मेज पर बैठेगा। So Mephibosheth is a picture of grace. तो मेफीबोशेत जो है ये एक अनुग्रह का तस्वीर है। And as Mephibosheth was sitting on David's table, all of us, because of Jesus, are sitting on the Father's table. जैसे मेफीबोशेत जो था वो दाऊद की मेज पर बैठा था, वैसे ही यीशु मसीह की वजह से हम सब पिता के मेज पर बैठे हैं। And we must learn to enjoy the Father's provision. और हमें पिता के संसाधनों को उनका लाभ उठाना हमें सीखना होगा। Let's look at the first point. हम पहले पॉइंट को देखेंगे। The Father has unlimited provision for every one of his children. पिता के प्रत्येक संतान के लिए असीमित प्रावधान है। Your heavenly Father has unlimited provision for every one of us. For each one of us, he has a lot of provision. हमारे स्वर्गीय पिता के पास हम सबके लिए, हम प्रत्येक संतान के लिए, सबके लिए काफी प्रावधान है। Anytime you feel like your provision is little, your resources are little, please, you have an heavenly Father. He has unlimited resources and it's all for us. जब आपको लगता है कि आपके संसाधन बहुत छोटे हैं, आपके संसाधन उतने पर्याप्त नहीं है, याद रखिए कि आपका स्वर्गीय पिता है और उसके संसाधन हम सबके लिए असीमित है। Many times you may feel like I don't have much. कभी-कभी आपको लग सकता है कि मेरे पास ज्यादा नहीं है, Or my resources are limited. या मेरे संसाधन बहुत सीमित है। How will I live? मैं कैसे जीऊंगा? And so look at your dad. Your dad has unlimited provision for you. और आप देखिए आपके पिता को, और आपके पिता के पास आपके लिए असीमित प्रावधान है। Amen. आमीन। Now look at Philippians 4:19. फिलिपियो 4:19 देखेंगे। It says, "But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus." और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। Now notice our need but his riches. अब देखिए कि जरूरतें हमारी, कमी घटी हमारी है, पर उसका धन उसका है। Okay? It is our need but it's his riches. हमारे कमी घटिया है पर उसका धन है। He didn't say that he will supply our needs according to our riches. उसने ये नहीं कहा कि वो हमारी कमी घटी को हमारे धन के अनुसार पूरा करेगा। And sometimes that's why we get frustrated and stressed. इसीलिए हम बहुत निराश और तनाव में आ जाते हैं, Because our resources are so limited. क्योंकि हमारे संसाधन बहुत सीमित है। We have a fixed salary. हमारी एक सटीक हमारी तनख्वाह होती है, We have limited resources. हमारे पास हमारे असीमित संसाधन है। He will supply your need according to his riches. वो आपकी कमी घटी को उसके धन के अनुसार पूरा करेगा। सब बोलिए किसका धन? उसका धन। सब बोलिए उसका धन। उसका धन। किसकी जरूरत है? हमारी जरूरत। हमारी जरूरत है, लेकिन धन किसका? उसका। उसका। See, this is extremely important. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम क्या सोचते हैं? हमारी जरूरत है, हमारा धन। लंबा नहीं जाएगा। Your need, your riches are very limited. आपकी जरूरतें, आपके संसाधन, आपका धन बहुत सीमित है। He says, "My God shall supply all your need." How? वो कहता कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी इस पूरी कमी घटी को पूरा करेगा। कैसे? How will he do it? कैसे वो करेगा? From where he will do it? और कहां से वो करेगा? Who will give it to him? कौन उसे देगा? Now he says, "My God shall supply your need, your whatever God has planned for your life according to his riches in glory by Christ Jesus." वो कहता कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक कमी घटी को उसके धन के अनुसार पूरा करेगा जो महिमा सहित यीशु मसीह में है। So no need to get stressed. तो तनाव में आने की कोई जरूरत नहीं। Lord, your riches, you will meet my needs. हम कहेंगे परमेश्वर आपकी आपके धन है और आप हमारी कमी घटियों को पूरा करेंगे। It's not our idea. ये हमारा विचार नहीं। He said he will meet our need according to his riches. उसने कहा कि वो हमारी जरूरतों को उसके धन के अनुसार पूरा करेगा। Say, let's say somebody has some money हम मानेंगे कि किसी के पास थोड़ा पैसा है and they say, "Your need I will meet according to my money."
और वो कहता है कि तुम्हारी जरूरत मैं मेरे पैसों से पूरा करूंगा, So don't worry about your money. तो तुम अपने पैसों के बारे में चिंता मत करो. Whatever your budget is, whatever your expense is, I will meet according to my money. तो वो कहता है जो भी तुम्हारा खर्चा है, जो भी तुम्हारे जितने भी खर्चे आने वाले हैं, वो सब मेरे पैसे से मैं भरूंगा. Here God is saying, I'll meet all your needs according to my riches. और यहाँ परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को अपने धन के अनुसार पूरा करूंगा. His riches. उसका धन He has promised us. उसने हमें वादा किया है. I will supply all your need according to my riches. तुम्हारी हर एक घटी को वो, हमारी हर एक घटी को वो उसके धन के अनुसार पूरा करेगा. We must start trusting our Father's provision. हमें अपने पिता के संसाधन पर भरोसा रखना शुरू करना है. The Father's greatest delight is when we look to Him. पिता की सबसे बड़ी प्रसन्नता इसमें है कि जब हम उसको देखते हैं. Father, you have riches. पिता आपके पास धन है. I live by your riches. मैं आपके धन के अनुसार जीता हूँ. देखिए, इसीलिए मेफीबोशेत के बारे में कहा, मेफीबोशेत से कहा गया था कि दाऊद के मेज पर बैठो और दाऊद के प्रावधान से खाओ. वही हमारा जीवन है. हम यीशु के कारण पिता के मेज में बैठते हैं और पिता के प्रावधान को खाते हैं. Amen. Praise. Every time you have breakfast, say it. जब भी आप नाश्ता करते हैं आप बोलिए. Every time you have lunch, say it. और जब भी आपका दोपहर का खाना खाते हैं आप बोलिए. Lord, as I eat on this table, I remind myself I'm sitting on my Father's table because of Jesus and I'm enjoying my Father's provision. और आप कह सकते हैं कि पिता जैसे मैं इस मेज पर बैठ के अपने खाने को खा रहा हूं, मैं अपने आपको याद दिलाता हूं कि मैं यीशु मसीह के द्वारा पिता के मेज पर बैठा हूं और पिता के सारे संसाधनों का आनंद ले रहा हूं. It's very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है. Again, but my God shall supply all your need. मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा. Maybe you have some need, शायद से आपके कुछ जरूरतें हैं, certain needs you have in your life. कुछ जरूरतें आपके जीवन में आती है. He said, I will supply it by my riches. वो कहता है कि मैं अपने धन के अनुसार उन्हें पूरा करूंगा. God has a lot of resources, परमेश्वर के पास बहुत सारे संसाधन है, unlimited. असीमित है. And so he said, I will supply it. और वो कहता है कि मैं उसकी आपूर्ति करूंगा. Point number 2. दूसरा पॉइंट. So I want to give you the keys of how to get it. और मैं आपको कुंजियां दूंगा उसे प्राप्त कैसे करें उनकी. First I showed you that your father has it, and now I want to give you keys how to get it. पहले मैंने आपको दिखाया कि आपके पिता के पास वो है. अब मैं आपको बताऊंगा कि उसे कैसे लेते हैं. No matter how much resources you have, please learn to live by your father's resources. भले आपके पास भले कितना भी संसाधन क्यों ना हो, कृपया करके पिता के संसाधनों के अनुसार जीना सीखिए. You know, the Israelites took gold and silver from the Egyptians and went into the desert. इजरायलियों ने मिस्री लोग से सोना चांदी लिया और वो रेगिस्तान में चले गए. But in the desert there is no water. अभी रेगिस्तान में कोई पानी नहीं. They can't drink gold. वो सोना तो नहीं पी सकते. बैग भर के सोना है, लेकिन सोना पी नहीं सकते हैं. पीने के लिए क्या चाहिए? पानी. वाह. बैग भर के सोना, लेकिन पानी नहीं है. सोने को पी भी नहीं सकते आप. सोने को देखो, पानी खरीद भी नहीं सकते क्योंकि पानी कोई बेच नहीं रहा है. So you have silver and you have gold, but there is no water. आपके पास सोना चांदी है पर कोई पानी नहीं है. So my point is, this is my encouragement to you, that no matter how much resources we have today, we must learn to live by the resources of our Father. और मेरा प्रोत्साहन आपसे ये है कि भले आज हमारे पास कितने भी संसाधन क्यों ना हो, हमें अपने पिता के संसाधनों के अनुसार जीना सीखना है. Even if you have little, भले आपके पास छोटा है or you have much, और आपके पास बहुत पर्याप्त है, don't let any amount of resources stop you from living by your Father's resources. कोई भी संसाधन की रकम आपको ये पिता के संसाधनों के अनुसार जीने में आपको रोके ना. He is so lavish. वो बहुत उदार है. 5,000 men, women and children. 5,000 स्त्री और पुरुष. And he multiplies it so much that everybody eats and 12 baskets remaining. और वो उसे इतना बहुगुणित करता है कि सब लोग खा के तृप्त होते हैं और फिर भी 12 टोकरियां बच जाती है. So we must learn to live by his resources. तो हमें सीखना है कि हमें उसके संसाधनों के अनुसार जीना है. His resources don't
stop when you get 60 years old. It doesn't stop. आप जब 60 वर्ष के हो जाते हैं तो उसके संसाधन रुकते नहीं। His resources don't stop because you are a female. उसके संसाधन इसलिए नहीं रुकते क्योंकि आप स्त्री है। His resources don't stop because you've crossed 60. और उसके संसाधन इसलिए नहीं रुकते क्योंकि आप 60 वर्ष के भी ऊपर है आपकी आयु। But how do I take it? तो पर मैं उसे कैसे ले सकता हूँ? Now, the Father's unlimited grace provision is hidden in the Father's assignments for you. पिता की असीमित अनुग्रह प्रावधान आपके लिए पिता के कामों में छिपा है। All of us must be conscious that we are on assignment. हम सभी को इस बात से जागरूक होना है कि हम सब पिता के काम करने के लिए आए हैं। Whether you are doing ministry, भले आप सेवकाई कर रहे हैं, or you are working somewhere, या आप कहीं काम कर रहे हैं, or you're doing business, या आप व्यवसाय कर रहे हैं, we must be conscious that we are on assignment. हमें बहुत जागरूक होना है कि हम पिता के काम के लिए भेजे गए हैं। Just like every soldier is sent for assignment, every believer is on assignment. जैसे हर एक सिपाही को एक कार्यभार दिया जाता है, वैसे हर एक विश्वासी को भी कार्यभार दिया गया है। Unless we become assignment minded, Father's provision cannot be released. जब तक हम पिता के कार्यभार की मानसिकता के नहीं हो जाते तब तक पिता के संसाधन रिहा नहीं होंगे। So the moment you become assignment minded, finances will be released. जिस क्षण आप कार्य मानसिकता के हो गए तब जाके वो संसाधन आजाद हो जाएंगे। The moment you become assignment minded, greater opportunities will be released. और जिस क्षण आप कार्यभार की मानसिकता के हो जाएंगे उस क्षण बहुत अच्छे अवसर आपके यहाँ पे रिहा हो जाएंगे। He said, I am on assignment. यहाँ पे मैं एक कार्यभार के साथ आया हूँ। The Father has sent me to do something. I am on assignment by my Father. मुझे पिता ने कुछ काम करने के लिए भेजा, यहाँ पे मैं अपने पिता के काम के लिए आया हूँ। The moment you become assignment minded, you partake of the unlimited grace provision that the Father has for you. जिस क्षण आप कार्यभार की मानसिकता के हो जाते हैं उस क्षण आप पिता के असीमित अनुग्रह प्रावधान के लिए आप सहभागी हो जाते हैं। I'm doing ministry, मैं सेवकाई कर रहा हूँ, but more than that, I'm on assignment here. पर उससे भी कई अधिक मैं यहाँ पे एक कार्य के लिए भेजा गया हूँ। One more assignment of mine is to write books. एक और कार्य है मेरा, कार्यभार है मेरा कि मुझे किताबें लिखनी है। Another assignment is that I have to minister to ministers. It's my assignment. एक कार्य मुझे और मिला है कि मुझे सेवकों की सेवकाई करनी है, ये मेरा कार्यभार है। And so one of my assignment is to write. एक मेरा कार्य है कि मुझे लिखना है। I've written more than 4,000 articles. और अभी मैंने 4000 से भी अधिक मैंने आर्टिकल लिखे हैं। And still I have so much more to write. और मुझे अभी भी कितना सारा है लिखने में। And 3 books have come out. 3 किताबें आई है। So many more books will come out. और कई अधिक किताबें बाहर आएंगी। It's my assignment. ये मेरा कार्य है। It's the grace that God has placed on my life. ये वो अनुग्रह है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन पर रखा है। So I know that Father's provision is hidden in the Father's assignments for you. तो मैं जानता हूं कि पिता का असीमित अनुग्रह प्रावधान आपके लिए पिता के कामों में छुपा है। Let's see Jesus. हम यीशु को देखेंगे अभी। Luke 2:46. लूका 2:46। He never lacked provision. उसके कभी भी कमी घटी नहीं हुई प्रावधान की। He told 12 people to leave everything and follow him. उसने 12 लोगों से कहा कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लो। He was so much partaking of the Father's resources that he could even take care of 12 more people. वो पिता के संसाधन में इतना ज्यादा सहभागी था कि वो और 12 लोगों की देखभाल भी कर सकता था। When you partake of the Father's resources, you will be able to take care of your entire family. जब आप पिता के संसाधन से आप सहभागी होते हैं तो आपने पूरे परिवार की देखभाल आप खुद कर सकते हैं। You can do it. आप खुद कर सकते हैं। It won't be a trouble for you. ये आपके लिए कोई मुसीबत की बात नहीं होगी। But we must know how to enjoy the Father's resources so we can take care of our family and not be stressed about it. इसलिए हमें अपने पिता के संसाधनों का लुत्फ उठाना सीखना है ताकि अपने हमारे घर के लिए हम कुछ करें और वो हमारे मन पे एक तनाव ना हो। You know Joseph? आपको पता यूसुफ? He took care of the entire Israel nation. One man took care of it. एक पुरुष ने
पूरे इजराइल के देश का देखभाल किया। You can take care of 4 people in your family. आप अपने घर के 4 लोग का देखभाल कर सकते हैं। You can do it. आप कर सकते हैं। It's not tough for you. ये आपके लिए कठिन नहीं है, Because it's not your resources, it's your daddy's resources. You can take care of anybody. क्योंकि ये आपका संसाधन नहीं, आपके पिता का संसाधन है। आप किसी की भी देखभाल कर सकते हैं। It's very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। Now look at Jesus, and it came to pass, Luke 2:46, that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of doctors, both hearing them and asking them questions. Jesus at 12 years old. और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे यीशु को मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठा उनको सुनता और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, और यीशु इस समय 12 वर्ष के थे। 47. All that heard him were astonished at his understanding and answers. और जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। जब आप पिता केंद्रित होते हैं, अलौकिक समझ आप में काम करता है। You just know how to use your time. You don't kill your time. You just know how to use your time. आप अपने समय को व्यर्थ नहीं करते, आप जान जाते हैं कब समय का इस्तेमाल कैसे करना है। When you become father centered, you become extremely wise. जब पिता केंद्रित होते हैं तो आप बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं। So all that heard him were astonished at his understanding and answers. और जितने ने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। 48. 48। And when they saw him, they were amazed. And his mother said unto him, Son, why hast thou dealt with us like this? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते हैं। Verse 49, very important. Verse 49. वचन 39। At 12 years of age. 12 साल की वर्ष में। And he said unto them, How is it that you sought me? Don't you know I must be about my father's business? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? Centered on the father. पिता पे पूरा केंद्रित, Thinking about the father. पिता के बारे में सोचना। At 12 years of age. 12 वर्ष की आयु में। Because unless we are father centered, unless we are assignment minded, provision can be released. जब तक हम पिता केंद्रित नहीं है, जब तक हम अपने कार्यभार की मानसिकता के नहीं है, तब तक वो प्रावधान हमारी ओर रिहा नहीं होगा। He said, I want to think about my father's work. वो सोच रहा है कि मुझे अपने पिता के कार्य के बारे में सोचना है। I must think about my father's assignment. मुझे अपने पिता के कार्य के बारे में सोचना है। Unless we become assignment minded, provision will always be a struggle. जब तक हम अपने कार्यभार केंद्रित नहीं होते, तब तक प्रावधान हमेशा संघर्ष होगा। Because it's daddy's provision, and daddy has given us key. The key is you become my assignment minded, and I will release my provision to you. क्योंकि प्रावधान पिता का है, और पिता के प्रावधान को प्राप्त करने का उसने कुछ कुंजियां बताई है, और वो है कि उसके काम के केंद्रित हम बन जाए, और उसके बाद वो प्रावधान हमारी ओर रिहा होगा। As Jesus grows up, जैसे यीशु मसीह बढ़ते हैं। okay, Luke 6. Let's go to the next verse. Luke 6:38. लूका 6 का 38। As he grows up, he says, For I have come down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. जैसे बड़े होते हैं वैसे कहते हैं कि क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। So no matter where you are, तो भले आप कहीं भी क्यों ना हो, no matter what you're doing, या आप कुछ भी कर रहे हो, you are saying, Father, I am here for you. आप कहते हैं कि पिता मैं यहाँ आपके लिए हूँ, I am doing this for you. मैं यहाँ आपके लिए कर रहा हूँ, You are my motivation. आप मेरी प्रेरणा है, I am working here for your glory. मैं यहाँ आपकी महिमा के लिए काम कर You रहा हूँ, have placed me here. आपने मुझे यहाँ रखा है, I'm going to please you in this job. मैं इस नौकरी में आपको प्रसन्न करूंगा, I'm going to honor you in this job. इस नौकरी में मैं आपका आदर करूंगा। And when you become father centered, now the father's provision will be released to your और life. जब आप पिता केंद्रित बनते हैं, अब जाकर पिता के संसाधन आपकी ओर रिहा होंगे। Provision doesn't just mean money.
प्रावधान का अर्थ हमेशा पैसा नहीं होता, It means strength, इसका अर्थ है सामर्थ, because to do your work you need strength. कि अपना काम करने के लिए आपको सामर्थ की जरूरत है, The Father's wisdom, पिता का बुद्धि, the Father's divine connections. पिता के दिव्य संपर्क, The Father brings the right people to you. पिता सही लोगों को आपके मार्ग में लेकर आता है, The Father opens the right door for you. पिता सही दरवाजों को आपके लिए खोलता है, The Father begins to talk to many people about you. पिता बहुत सारे लोगों से आपके बारे में बात करता है। So when we become assignment minded, I am here to do what my Father wants. और जब हम पिता केंद्रित हो जाते हैं और यहाँ वो करने आए हैं जो हमारे पिता ने हमें कहा है, This is not just for ministers. ये केवल सिर्फ सेवकों के लिए नहीं है, As Jesus is, so are all of us. जैसा यीशु ऐसे हम सब है। That means all of our role model is Jesus Christ. इसका अर्थ है कि हम सभी का उदाहरण यीशु मसीह है। So no matter where I am working, इससे फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ काम कर रहा no हूँ matter what I am doing, या मैं क्या कर रहा हूँ, my standard for life is Jesus Christ. मेरे पूरे जीवन का उदाहरण यीशु मसीह है। Even if I'm a housewife, भले मैं एक घर पे रहने स्त्री क्यों ना हूँ, your standard for life is Jesus Christ. मेरे पूरे जीवन का आदर्श यीशु मसीह है। So as a housewife, if you become father centered, father's provision is coming to you. तो एक हाउसवाइफ होने के नाते भी अगर आप पिता केंद्रित बन गए तो पिता का प्रावधान आपकी ओर आएगा। Because देखिए वचन में लिखा है, he said, you of little faith. That means little faith blocks the provision. उसने कहा है अल्प विश्वासी, इसका अर्थ है कि छोटा विश्वास, अल्प विश्वास जो होता है वो विश्वास को रोकता है। Little faith on whom? अल्प विश्वास किसके ऊपर? On God. परमेश्वर के He ऊपर। says your faith on me to provide for you is very little. वो कहता है कि तुम्हारा जो भरोसा है मुझ पर कि मैं तुम्हारे प्रावधान कर सकता हूँ वो बहुत छोटा है। Your faith on yourself is too much. तुम्हारा भरोसा अपने ऊपर बहुत ज्यादा है, But your faith on me to provide for you is very little. पर तुम्हारा विश्वास कि मैं तुम्हारा प्रावधान कर सकता हूँ वो बहुत छोटा है। So how do I receive the provision? तो मैं वो प्रावधान कैसे प्राप्त करूं? For I have come down from heaven not to do what I want. I didn't come down to pursue my dream. जितने जवान हैं यहाँ पे, I didn't come down to pursue my dream. I didn't come down to pursue my ambitions. I came to do what you want. क्योंकि मैं स्वर्ग से Praise अपनी God. इच्छा नहीं, अपने सपने नहीं, अपने जुनून नहीं, अपनी महत्वाकांक्षा नहीं, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। Anyone who's serious about God जो भी व्यक्ति परमेश्वर के बारे में बहुत गंभीर है prays much in tongues. वो बहुत ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है कि आप करें आपको पता नहीं, you don't know, so you pray in tongues till you tap into the network. आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर जब तक आप उस नेटवर्क में आ नहीं जाते। So I said I've come to do your will. उसने कहा कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। And the Father says, because you have come to do my will, here is my provision for और you. पिता कहता है क्योंकि तुम मेरी इच्छा पूरी करने आए हो तो ये मेरा प्रावधान है तुम्हारे लिए। Next verse 434. अगला वचन 4:34। My brothers and sisters, we don't know many people. God knows everybody. भाई और बहनों, हम ज्यादा लोगों को नहीं जानते, परमेश्वर सबको जानता है। सोचिए यीशु मसीह क्रूस पर ये सोच रहे हैं कि मेरे शरीर को दफनाएंगे कहाँ पे ये लोग, इधर छोड़ेंगे तो नहीं क्रूस में, और उस बात को लेके चिंतित कि मेरे मरने के बाद मेरे को छोड़ दिया यहाँ पे तो। बट यू नो गॉड is already talking to Joseph of Arimathea. और परमेश्वर यूसुफ से बात कर रहा है। He's already talking to him. वो पहले से बात कर रहा है। When Jesus dies on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरते हैं, suddenly there is an entry of Joseph of Arimathea. और अचानक से यूसुफ की उसका प्रवेश होता है। Everything is planned. और सब कुछ योजना बना चुकी है। God is an amazing way to help you. परमेश्वर के पास एक अद्भुत तरीका है आपकी मदद करने का। So Jesus says, John 4:34, my food is to do the will of him that sent me and to finish his work. यीशु कहता है कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। How beautiful if every businessman speaks like this. कितना सुंदर हो कि हर एक व्यापारी ऐसे बात करे।
It'll be so great if every corporate employee speaks like this. ये कितना महान चीज होगा कि हर एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला कर्मचारी ऐसे बोले। It'll be so good if every student speaks like ये this. कितना अच्छी बात है अगर हर एक विद्यार्थी ऐसा बोले, Every minister speaks like this. हर एक सेवक ऐसा बोले। My food is to do the will of him that sent me and to finish his work. मेरा भोजन अपने भेजने वाले के अनुसार मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले के अनुसार करूं और उसके काम को पूरा करूं। Instead of saying my ambition, my dream, my agenda, that will block the ये provision. कहने के बजाय कि मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरे सपने, मेरी योजना है, और ऐसा करने से आपने प्रावधान को रोक देंगे। Okay, finally, आखिर में be fully consumed with the Father's divine assignments for your life. अपने जीवन के लिए पिता परमेश्वर के दिव्य कार्यों में पूरी तरह से लीन हो जाइए, No matter where you are. भले आप कहीं भी क्यों ना हो। Be fully consumed, मतलब वही दिखता है आपको, खाना खाने के टाइम भी आप वही सोच रहे हैं। That's what you're consumed with. It's the Father's assignments for your life. और आपको हर जगह वो दिखता है, आप उसमें इतना लीन है कि आपको हर जगह वही दिखता है और वो पिता का कार्य है। So let's break it down. What does that mean? अभी हम इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं और उसका अर्थ क्या है हम जानते हैं। For example, let's say I am a teacher in a school. मानिए कि ये कहा जाए कि मैं एक शिक्षक हूँ एक विद्यालय में, I am teaching in a school. मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ I am working there. और मैं पे काम कर रहा हूँ। So how do I fulfill the Father's assignment in a school? तो मैं पिता के काम को एक स्कूल में कैसे पूरा करूँ? Well, let's break it down. अभी हम सब थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते हैं। Number one, your first assignment is your personal fellowship with Jesus Christ. That's number one. पहला है कि आपका जो व्यक्तिगत रिश्ता है आपका यीशु मसीह के साथ, वो अच्छा करना। Whether you are a teacher, a doctor, a designer, or a plumber, or a pastor, wherever you are, your first assignment is your personal relationship with Jesus Christ. भले ही आप एक शिक्षक है या डॉक्टर है, डिजाइनर है या पासबान क्यों ना है, आपका सबसे पहला कार्य है कि आपका यीशु मसीह के साथ वो एक घनिष्ठ रिश्ता, So that consistently growing in the knowledge of Him, उसके ज्ञान में निरंतर रूप से बढ़ना, keeping yourself full of the Spirit. अपने आप को आत्मा से परिपूर्ण रखना। You know, Daniel was a government employee, दानियल जो था वो एक सरकारी कर्मचारी था, very busy man. बहुत व्यस्त व्यक्ति था, But 3 times in a day he will pray. पर 3 बार वो दिन में प्रार्थना करता था। 3 times. 3 बार। Now he was working because his assignment was in Babylon under 4 kings. और वो काम कर रहा था क्योंकि उसका कार्य ये था कि वो बाबुल में वो 4 राजाओं के अधीन वो काम करे। But his primary assignment is your personal relationship with Jesus Christ. So no matter where you are, your first work is to be closer to Jesus and constantly grow in fellowship and in knowledge of Him. तो आपका प्राथमिक बुलाहट, आपका प्राथमिक कार्य ये है कि आप यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखें, उसे बढ़ाएं और निरंतर रूप से उसके ज्ञान में बढ़े, Grow in His knowledge. उसके ज्ञान में बढ़े। Look, okay, I know Jesus is Lord, Jesus is healer, Jesus provides. No, there is so much more. Grow in His knowledge. हाँ, मैं जानता हूँ यीशु प्रभु है, यीशु हमारा उद्धार करता है, यीशु चंगा करता है, उसके अलावा बहुत कुछ है। Constantly growing in His knowledge. निरंतर रूप से उसके ज्ञान में बढ़ना, Constantly growing in His knowledge. निरंतर रूप से उसके ज्ञान में बढ़ना। That's your first assignment wherever you are. Whatever you're doing, your first assignment is to be with Jesus, spend time with Him, live with Him, grow in His knowledge, deepen your fellowship with Him, with whatever you're doing. आपका पहला कार्य, भले आप कहाँ भी हो, आप कुछ भी क्यों ना करो, आपका पहला कार्य है कि आप यीशु को जाने, उसके रिश्ते में आप बढ़िए, उसके ज्ञान में आप बढ़िए, उसके साथ जिए और आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको उसमें शामिल करिए। Be full of the Spirit. आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए, That's your assignment. ये आपका कार्य है। Be full of the Spirit आत्मा से परिपूर्ण होना, along with your work. आपके काम के साथ साथ Be full of the Spirit आत्मा से परिपूर्ण होना, along with your job. आपकी नौकरी के साथ साथ Whatever you're doing, आप जो कुछ भी कर रहे हो, be full of the Spirit. आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Some people think assignment में सब कुछ छोड़ करके, no, whatever you're doing, be full of the Spirit. अब जो कुछ भी कर रहे हैं आप उसमें आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। You have to travel, आपको यात्रा करनी होती है and while you're
traveling, you're praying in tongues. और आप जब यात्रा करते तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। A person who is full of the Spirit is a better teacher. एक व्यक्ति जो आत्मा से परिपूर्ण है वो एक अच्छा शिक्षक है। An employee who is full of the Spirit is a better employee. एक कर्मचारी जो आत्मा से परिपूर्ण है वो एक बेहतर कर्मचारी है। Your number 2 assignment is to reveal Jesus. आपका दूसरा काम या कार्यभार है कि यीशु मसीह को प्रकट करना। Because there are a lot of people in your office or in your business or in your school or in ministry, lot of people everywhere. So our second assignment is to reveal Jesus, is to show Jesus through your life. First of all to your family members. और हम जहाँ अलग अलग जगह पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, हम सेवकाई में लोगों को मिलते हैं, हमारे स्कूल में लोग होते हैं। हमारी दूसरी बुलाहट एक कार्य है कि हमें यीशु को प्रकट करना है। We know that Jesus is excellent. हम जानते हैं कि यीशु मसीह उत्तम है। We know that he is not lazy. हम जानते हैं कि वो आलसी नहीं। So you are there working as a teacher or wherever you're working, and you are being full of the Spirit, and that excellence is seen in your work. अब भले कहीं भी काम कर रहे हो, आप शायद शिक्षक हो और आप पूरी आत्मा से परिपूर्ण हो और वो उत्तमता आपके शिक्षण में दिखती है। Because it will become easier for you to preach the gospel if you are excellent. तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सुसमाचार का प्रचार करने में अगर आप उस चीजों को जिए। So wherever God has assigned you to be, तो जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने आपको रखा है, you are becoming closer and closer to Jesus every day. आप हर दिन यीशु के और करीब होते जा रहे हैं। You're always drunk. आप उसके साथ पूरे लत में भर चुके हैं। You know, that's our assignment, be drunk. और ये हमारा कार्य है कि हम पूरे मतवाले हो जाए। ये दूसरा drunk है। ये अलग मतवालापन है। Praise God. This is different drunk. ये अलग मतवालापन है। Filled with the Spirit. आत्मा से परिपूर्ण होना। It's your assignment. ये आपका कार्यभार है। Just being drunk. सिर्फ मतवाला होना। Drunk with the Spirit. आत्मा से मतवाला होना। Because everyone wants to do better. There is no way you can do better unless you're full of the Spirit. हर किसी को बेहतर करना और आपका बेहतर करने का दूसरा कोई जरिया है ही नहीं कि इसके कि आप अपने आप को आत्मा से भरते जाए। There are so many assignments. Another assignment is expand the kingdom, build God's house. एक और बहुत सारे कार्य, एक और कार्यभार है कि परमेश्वर के भवन को बढ़ाओ, उसके भवन को विस्तार करो। So I'm praying much in tongues. तो मैं अन्य भाषा में और अधिक प्रार्थना कर रहा हूँ। Because it will make you a better employee. क्योंकि वो आपको एक बेहतर कर्मचारी बनाएगा। It will make you excellent in your work. वो आपको के काम में उत्तम बनाएगा। You know, when Daniel used to speak, everybody used to listen, including the king. जब दानियल बात करता था तब सब उसकी सुनते थे, राजा को भी। Somebody said because बहुत आत्मिक था. No, not because he was spiritual. इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा आत्मिक था। Because he was excellent in his work. क्योंकि वो अपने काम में बहुत उत्तम था। Praise God. So why should we be spiritual? तो हमें आत्मिक क्यों होना है? Because spiritual people are excellent in their work. क्योंकि आत्मिक लोग अपने कामों में बहुत उत्तम होते हैं। The Bible says there was no negligence found in Daniel's work. और बाइबल कहती है कि दानियल के काम में कोई भी कलंक ना पाया गया। So I'm consumed with the Father because you're representing the Father, you're thinking about the Father, and the Father is in your heart. You're doing everything for the Father, and the Father begins to talk to a lot of people for you. और आप पिता केंद्रित है, पिता आपके मन में है, आप पिता के बारे में हर समय विचार करते हैं, आप पिता से भरे पड़े हैं, आप पिता बहुत सारे लोगों से बात करता है आपके बारे में। Lord, I must expand your kingdom here. प्रभु मुझे आपका राज्य यहाँ बढ़ाना है। While I was working in a company, जब मैं कंपनी में काम कर रहा था and we had a team, और हमारी भी एक टीम थी, so I will pray for them because I know my assignment is not forever. I'm not going to be forever in this company. I have a season here. क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कार्यभार इस कंपनी में बहुत सीमित है और मेरा यहाँ पे एक मौसम के लिए हूँ यहाँ पे मैं। So I will pray for them. तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। Lord, give me opportunity to preach the gospel to them and also help me be excellent so that when I speak, my words will have weight. तो मैं कहता था कि प्रभु मुझे वो अवसर दीजिए कि मैं उनको सुसमाचार प्रचार करूं और साथ ही साथ मुझे अपने कामों में उत्तम बने ताकि जब मैं बोलूं तो मेरे बोली में प्रभाव होगा। So I was talking to a lot of my
friends and I preached the gospel to them. तो मैं अपने मित्रों से, बहुत सारे मित्रों से मैं बात ही करता था और उनको अपना सुसमाचार प्रचार करता था. You know, people who have negative agenda, बहुत सारे लोग जिनकी बहुत गलत योजनाएं हैं, they come to a place and they see where the cameras are, वो देखते कि कैमरा कहाँ है, where you can hide. कहाँ पे आप छुप सकते हैं. गलत मानसिकता, गलत एजेंडा, क्योंकि एजेंडा बर्बाद करना है तो देख रहे हैं कि कैमरा क्या क्या पकड़ सकता है, कहाँ छिप सकते हैं हम, होएगा तो कहाँ भाग सकते हैं. गलत मानसिक. लेकिन हमारा मानसिकता सही है, हम कैमरा नहीं ढूंढ रहे हैं. हम ढूंढ रहे हैं कि प्रभु हमें मौका दीजिए. Give us opportunity so that in front of this manager and in front of my colleagues, not only through my words but also through my excellence, let me present Jesus to them. और मैं ये कहता था कि प्रभु मुझे इस मैनेजर के सामने, जो मेरे साथ काम करते हैं उनके सामने, मैं यीशु मसीह को बेहतर रूप से प्रकट करूं, सिर्फ मेरे शब्दों के द्वारा नहीं वरन मेरे काम की उत्तमता के द्वारा भी. Before I was out of college, I had a job. जब मेरा कॉलेज खत्म होने से पहले मेरे पास नौकरी था. I decided to leave the first job and I had the second job right. Friday was the last day, Monday was the first day for the second job. और मैंने अपनी पहली नौकरी छोड़ी, जब शुक्रवार को मैंने अपनी पहली नौकरी छोड़ी और दूसरे और अचानक सोमवार को मुझे दूसरी नौकरी मिल गई. 2010 की बात है. My salary went from 15,000 to 27,000. मेरी तनख्वाह 15,000 से 27,000 तक चली गई. 15 years ago. 15 साल पहले. And so what I'm saying is, when you're father centered, चीजें अपनी जगह पर गिरने लगेंगी. Amen. It will just happen for you. और वो से आपके लिए हो जाएगा. And while I was working 27,000 in a corporate world in Abbott Pharmaceuticals corporate finance division, जहाँ पे मैं एबर्ट फार्मास्यूटिकल में जब मैं काम करता था 27,000 के लिए, and I told my boss that I have to go, God has called me. और मैंने अपने बॉस से कहा कि मुझे जाना होगा, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है. So he offered me a different department, 50,000 salary, 27 से 50. तो उन्होंने मुझे अलग डिपार्टमेंट में एक नौकरी दी और वो थी 50,000 की, 27,000 50,000 रुपए. He said, I will give you 50,000. उन्होंने कहा कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा. This is 15 years ago. और ये 15 साल पहले की बात है. 50,000 rupees. 50,000 रुपए. So he's tempting me to stay back. और वो मुझे प्रलोभन दे रहे हैं कि मैं रुक जाऊं. I said no, I have to go. और मैंने कहा नहीं, मुझे जाना होगा. God has called me. परमेश्वर ने मुझे बुलाया है. So what I'm saying is, including my marriage, including the jobs, including how life is today, if you are father centered, आपका हर एक कदम उन रास्तों पर आएगा जो पहले से आपके लिए तैयार है. It's very easy. आपकी शादी के, आपके विवाह के साथ, आप आपके घर के साथ आप जो कुछ कर रहे हो उसके साथ, अगर आप पिता केंद्रित है तो जो कुछ आप करेंगे उसके कदम, आपके कदम जो है सही जगह पे आके रखेंगे. I'm just thinking about my dad. मैं सिर्फ मेरे पिता के बारे में सोच रहा हूँ. Lord, what do you want? पिता आप क्या चाहते हैं? I am available for you. मैं आपके लिए वहाँ पे उपलब्ध हूँ. Wherever you want. जहाँ कहीं भी आप चाहे. I said it in my marriage also. Lord, whomever you want me to marry. मैंने अपने विवाह में भी कहा कि प्रभु जिससे भी आप चाहते हैं कि मेरा विवाह हो, wherever they are, वो जहाँ कहीं भी हो, whichever country, कोई भी देश में क्यों ना हो, whichever state, या किसी भी राष्ट्र में क्यों ना हो, my focus is you. Our marriage should glorify you. So whoever you have for me, I'm ready. मेरा केंद्र आप है, हमारे विवाह का केंद्र आप है, तो आप जिससे भी चाहते हैं मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ. So it became very easy. तो बहुत आसान हो गया. So my point to you is, Father's provision gets flooded on you if you become father centered. पिता का प्रावधान आपके ऊपर मानो बाढ़ के समान आता है जब आप पिता केंद्रित बनते हैं. Even today, आज भी we are father centered. हम पिता केंद्रित हैं. We are not pursuing our dream. हम हमारे सपने के पीछे नहीं भाग रहे. We are not pursuing our ambitions or our agenda. No, we are pursuing what God wants. हम अपने एजेंडा या अपने महत्वाकांक्षा के पीछे नहीं भाग रहे. हम परमेश्वर जो चाहता है वो पूरा कर रहे हैं. Finally, last verse. आखिर में Luke 22:35, beautiful verse. And he said unto them, Jesus said unto them, when I sent you without purse, scrip and shoes, did you lack anything? And they said nothing. लूका 22:35 बहुत सुंदर वचन है. और उसने, यीशु ने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें
भेजा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा तो क्या तुम्हें किसी वस्तु की कमी घटी हुई? उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। Anytime he sends you, जब कभी भी वो आपको भेजता है, now he is responsible for the smallest bill to the biggest bill. He is responsible. अभी छोटे से लेकर सबसे बड़े भुगतान का भी वो जिम्मेदार है, And he will take care of it. और वो उसके पूरी देखभाल कर He लेगा। knows how to get the money to you. वो जानता है कि वो पैसा आप तक कैसे लाना है, He knows how to bring it to you. वो जानता है उसको आपके तक कैसे लाना है। Now, because you're father centered, अब क्योंकि आप पिता केंद्रित है, he knows how to get it to you. वो जानता है उसे आपकी ओर कैसे लेके आना है, And just before you need it, you will have the money. और आपको जिस क्षण जरूरत पड़े उससे पहले आपके पास वो होगा। One time the Lord told me, एक बार प्रभु ने मुझसे कहा, He said, Ashish, don't live by your resources. Your resources are so. He said, live by my resources. Learn to think about in everything you do. He said, Ashish, learn to live by my resources. Don't focus too much on your resources. It can stress you out. Learn to live by my resources. Learn to live by my resources. And I keep that in mind all the time. और प्रभु ने मुझसे कहा कि आशीष तुम अपने संसाधनों को देखना बंद करो, बहुत छोटा है, तुम मेरे संसाधनों के अनुसार जियो, तुम मेरे संसाधनों के ऊपर तुम मेरे संसाधनों के ऊपर तुम जियो, और मेरे संसाधनों को जैसे तुम देखोगे वो तुम्हारे हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे। So I speak that to myself. और मैंने वो अपने आप से बोलना शुरू किया। My father has resources. मेरे पिता के पास संसाधन है, My father has resources. मेरे पिता के पास संसाधन है। So I pursue it. If he didn't have resources, I can't pursue his agenda. I have to pursue my own resources. अगर उसके पास वो प्रावधान होता तो मुझे अपने खुद के योजना के पीछे भागना पड़ता, उसकी योजना के पीछे नहीं जाना पड़ता, Because he knows we need food to eat. कि वो जानता है हमें खाना है, We have bills to pay. हमें बिलों का भुगतान करना है। If he doesn't have resources, then we have to pursue resources. But he says, I have resources, therefore you pursue my agenda. अगर उसके पास संसाधन नहीं होते तो हमें अपने संसाधन खुद ढूंढने पड़ते, पर वो कहता है कि उसके पास संसाधन है, इसीलिए हम उसके कार्य को ध्यान देते हैं। Pray for your colleagues. अपने जो काम करते हैं जिनके साथ, आप उनके लिए प्रार्थना करिए, They should be saved. वो उद्धार में आने चाहिए। Pray for your manager. आपके मैनेजर के लिए प्रार्थना करें, Even though you don't like him, भले आपको वो पसंद नहीं है, you pray for him. आप उसके लिए प्रार्थना करें, That's why you're there. इसीलिए आप वहां हैं। You're not there for other things. You are there to expand the kingdom. आप वहां कोई और चीजों के लिए नहीं, आप वहां पे राज्य का विस्तार करने के लिए है। Ask God for opportunities to share your testimony as to what Jesus has done for you. और आप परमेश्वर से मांगे कि वो आपको अवसर दे कि आप यीशु मसीह ने जो आपके लिए किया है, आप उसकी गवाही आप उनको बता पाए। एक और चीज, the Bible says the spirit of excellence was on Daniel बाइबल कहते कि उत्तमता की आत्मा दानियल पर थी, because he was a man of prayer. क्योंकि वो प्रार्थना का व्यक्ति था। Now, if you spend time with Jesus personally, अगर आप व्यक्तिगत रूप से यीशु के साथ आप समय बिता रहे हैं, you will see that whatever you are doing becomes excellent. और आप देखेंगे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उत्तम है, And that excellence becomes an opportunity for you to reveal Jesus Christ. और वो उत्तमता आपको एक मौका देती है कि आप यीशु को प्रकट करें। You know, some people who have जिनका एजेंडा गलत होता है, you know what I'm talking about, आप जानते हैं, जो गलत मानसिकता के साथ कंपनी में आते हैं, शहरों में आते हैं, गलत सोच है उनका, वो भले ही सबसे बात कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन सब उनका एजेंडा उनके मन में है। वो देख रहे हैं कहाँ क्या कर सकते हैं, कहाँ से बाहर जाते हैं, कैमरा क्या है, खिड़की किधर है, कितने लोग आते हैं, कौन बैठा है, वो आपको देख रहे हैं, हंस रहे हैं आपके साथ, सब देख रहे हैं और फिर देख रहे हैं आजू बाजू में। Our life is like that. We have a father's agenda. हमारे पास पिता की एक योजना है। We are talking to people. हम लोगों से बात कर रहे We are हैं, enjoying many things. हम बहुत सारे लोगों का चीजों का लुत्फ उठा रहे But हैं, in all that we are thinking, Lord, this place has to change because I'm here. और हम सोचते हैं कि प्रभु मैं यहाँ हूँ इसलिए इस जगह को बदलना होगा, This place has to change. इस जगह को बदलना होगा, That's why I'm here. इसलिए मैं यहाँ हूँ। And I know I'm not here forever. I'm here for a season. Now before I leave from here, this place will change. और मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं, मैं यहाँ पे एक मौसम के लिए, और मेरे जाने से पहले ये जगह बदल जाएगी, Because with Jesus, you will go higher. क्योंकि यीशु के साथ आप और ऊपर जाएंगे। तो जहां पर भी आप हैं, वहां पर आपका एक असाइनमेंट है। आप हमेशा के लिए वहां पर रहने नहीं वाले, आप ऊपर जाने वाले हैं। तो जब आप यहाँ पर हैं,
परमेश्वर के काम को आपको पूरा करना है. Amen. Praise God. Okay, let's pray. आइए हम प्रार्थना करें. Father, we thank you for what we have heard today. पिता धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आज हमने सुना. Your provision follow us because we are father centered and assignment minded. आपका प्रावधान हमारे पीछे आता है क्योंकि हम पिता केंद्रित है. This society must know you. इस समाज को जानना है आपको. This workplace must know you. ये जहाँ पे हम काम करते हैं उसे आपको जानना है. Our managers must know you. हमारे मैनेजर को आपको जानना है. And let them know through our lives. और वो हमको आपको हमारे जीवन के द्वारा जाने. Through our character. हमारे चरित्र के द्वारा जाने. Through our excellence. हमारी उत्तमता के द्वारा जाने. Through the way we talk. जिस तरह से हम बात करते हैं उसके द्वारा जाने. Let Jesus be revealed through our lives. हमारे जीवनों के द्वारा यीशु मसीह प्रकट हो. Help us, Lord. Empower us. प्रभु हमारी मदद करे और हमें सशक्त करे. In Jesus' mighty name. यीशु के महान नाम में. Amen. Amen. Amen.